student. Today we will study class 4th EVS chapter 14, that is Baswa's farm. In this chapter we know how the crops grow. Student, as you all know, our country India is an agricultural based country. Maximum people of our country do farming for their living. 2/3 of population of India is engaged in agriculture. So here a child Baswa is telling about her field and her father. Baswa lived in Belvanika village in Karnataka. Look, this is the map of India and here is the Karnataka, and in this Karnataka state there is a village named Belvanika where Baswa lived. Baswa's father is a farmer. Now, do you know who is farmer? Farmer is a person who works on farm and grows crops. If there were no farmer, it will be very difficult for us to get food. What is crops? A cultivated plant that is grown on a large scale commercially is known as crops, especially cereals, food, fruits or vegetables. Types of crops. The major crops can be divided in 4 major categories depending on their uses. Food crops, cash crops, plantation crops and horticulture crops. Food crops like wheat, maize, rice, millets and pulses. These are food crops. Cash crops like sugarcane, tobacco, cotton, jute, oilseeds. These are cash crops. Plantation crops. Plantation crops is coffee, coconut, tea, rubber. Horticulture crops. Fruits and vegetables comes under the horticulture crops. Baswa fathers grow onion crops. जैसे आपने देखा कि एक फार्मर जो होता है वो क्रॉप्स ग्रो करता है, उसी तरह से इस चैप्टर में जो बच्चा है बासवा, उसके पापा अनियन क्रॉप्स ग्रो करते हैं. बासवा बताता है कि इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई एंड बासवा's फादर इज़ प्रिपेयरिंग फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप्स. ये जुलाई का मंथ है और बासवा के पापा अनियन क्रॉप्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं. अब अनियन क्रॉप्स लगाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं. जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो स्टेप्स टू ग्रो अनियन क्रॉप्स. नंबर 1 इज डिगिंग द सॉइल. हिज फादर हैज बीन यूजिंग द खुंती टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. अब बासवा के पापा क्या कर रहे हैं, बासवा के पापा मिट्टी को खोद रहे हैं जिससे कि वो मिट्टी लूज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए. इससे क्या होगा, जब वो सीड लगाएंगे तो उसके रूट्स जो है बहुत अंदर तक जाएंगे. इससे वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा. देखिए ये खुंती है, इसी से उसके पापा डिगिंग कर रहे हैं. और किस तरह से कर सकते हैं, हम प्लाऊ की हेल्प से भी डिगिंग कर सकते हैं. और आजकल जो है ट्रैक्टर्स का यूज करके भी हम डिगिंग करते हैं. जो फार्मर होते हैं वो ट्रैक्टर का यूज करके भी डिगिंग करते हैं. ये सारे टूल्स हैं जो हमारे फार्मिंग में हेल्प करते हैं. नंबर 1 इज प्लाउ, drawn over soil to turn it over and cut furrows and planting of seeds. Next, second is trowel, scoop or lift plants or soil. Sickle, used to cut corn, looping or trimming. Rake, used especially for drawing together cut grass or smoothing loose soil or gravel. Shovel, used for removing and throwing loose matter or earth. Mattock, used for digging and chopping. सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड. जब हमारा जो फार्म है वो डिगिंग करके रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम सीड लगाने की तैयारी कर रहे हैं. बासवा के पापा भी सीड लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कुरीज. Baswa's father is sowing seed with the help of courage.
His father did not allow Baswa to do the to sow the to do the sowing. देखिए ये बासवा के फादर है जो कुरीज का यूज करके सीड लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इसमें सीड डाल रहे हैं और सीड उससे ये थ्रू नीचे गिरता जा रहा है। जैसे जैसे बुलक्स आगे जा रहे हैं वो सीड्स नीचे गिरता जा रहा है। अब उसके बासवा के पापा ने उसे ये काम करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अभी छोटा था, वो ये काम अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। देखिए ये कुरीज है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने बासवा को सीड लगाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि सीड जो है वो एक ही जगह पर गिरा देगा एक साथ। तो जो सीड है, सीड नीड टू बी सोड एट राइट डेप्थ एंड करेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। Sowing seeds very close to each other prevents them from growing well as they had to compete for space, water, etc. अगर वो पास पास सीड लगा देंगे तो जब वो ग्रो होंगे तो वो एक दूसरे से compete करेंगे, मतलब सनलाइट लेंगे तो भी वो प्रॉपरली एक सीड को अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, उसको स्पेस कम मिलेगा, उसको सनलाइट कम मिलेगा और सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। इससे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए बासवा के फादर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया कि कहीं वो एक ही जगह पर बहुत सारा सीड गिरा देगा तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप इज मैन्योरिंग और इरिगेटिंग। सॉइल को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ मैन्योर्स मिला देते हैं। इसलिए मिलाते हैं ताकि उसमें अगर किसी चीज़ की कमी हो उस सॉइल में तो वो पूरी हो जाए। जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है सॉइल की, जिससे कि कोई प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर उस सॉइल में उस चीज़ की कमी होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम अलग से मैन्योर उसमें मिलाते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी और अच्छी हो जाए और वो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। जब एक प्लांट लग जाता है तो उसके बाद हम सीड लगा लेते हैं, तो उसके बाद इरिगेटिंग करते हैं। इरिगेटिंग मीन्स पानी डालना पूरे फार्म पे। Manure or fertilizers are added to the soil to get a healthy crops. Once the seeds are sowed, the field is watered at regular interval of time. Time to time हम उसमें पानी देते हैं। Different crops require different amount of water. अलग अलग तरह के क्रॉप्स को अलग अलग अमाउंट का वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ स्टेप इज वीडिंग। After few days, the seed sprout and grow into seedling. कुछ दिनों के बाद जो है वो सीड में से छोटे छोटे पौधे निकल आए जिन्हें सीडलिंग कहते हैं। उनके साथ साथ जो है वीड्स भी निकल आए। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जिन्हें हम ग्रो नहीं करते, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। Unwanted plant called weeds grow between the crops. These are removed by farmer as they use up the nutrients and water from the soil. अब इन वीड्स को निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इस वीड्स को नहीं निकालेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या वाटर हम अपने क्रॉप्स के लिए डालेंगे वो ये वीड्स भी यूज करेंगे और वो वीड्स ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे और वो बाकी के जो क्रॉप्स होंगे, हमारा मेन क्रॉप होगा, उसको अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पाएगा और ये वीड्स उसका सारा का सारा जो होगा न्यूट्रिएंट्स या वाटर जो भी होगा वो उसको छीन लेंगे। इसीलिए हम वीड्स को निकाल देते हैं ताकि हमारा क्रॉप जो है वो हेल्दी ग्रो कर पाए। फिफ्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग। जब कोई भी क्रॉप जो है मैच्योर हो जाता है तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं, उसे ही कहते हैं हार्वेस्टिंग। यहाँ पर बासवा भी हैप्पी था ये देखकर कि उसका प्लांट ग्रो कर रहा था। दे आर टॉल एनफ टू बासवास नीड। अब वो इतने बड़े हो गए थे कि बासवा के घुटने तक आ रहे थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। और जो अनियन की लीव्स थी वो
पीली होनी शुरू हो गई थी और सूखने लगी थी। इसका क्या मतलब था? दिस मीन्स दैट द अनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट। और इसका मतलब ये था कि अब अनियन को उखाड़ा जा सकता है, वो तैयार है। क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड एट राइट टाइम, अदरवाइज इट मे बी रॉटन और बिकम ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर हमने समय पर क्रॉप जो मैच्योर हो गया है उसे नहीं निकालेंगे समय से, तो वो सड़ जाएगा या फिर पुअर क्वालिटी का हो जाएगा। इसीलिए हमें हार्वेस्टिंग भी टाइम से कर लेनी चाहिए। इसीलिए उसके पेरेंट्स भी अनियन को उखाड़ने में लग गए। सिक्स्थ स्टेप इज थ्रेसिंग एंड विनोइंग। कुछ अदर क्रॉप्स होते हैं जैसे व्हीट, राइस एट्सेट्रा, उनमें ये दो स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट हेल्प टू लूज ग्रेन्स फ्रॉम द स्किन सराउंडिंग देम। थ्रेसिंग करने से क्या होता है कि जैसे व्हीट है, उसको स्टेम में से निकालना है तो उसको पीट कर स्टेम में से निकाला जाता है। इससे उसके दाने, जो व्हीट के दाने या राइस के दाने हैं, वो स्टेम से अलग हो जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस आता है विनोइंग। विनोइंग में हम क्या करते हैं? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। इसमें जो उसके छिलके इसमें लगे हुए होते हैं, उससे उसको इस तरह से हवा में उड़ाते हैं तो वो छिलके जो है हवा से उड़ जाते हैं और जो व्हीट होता है वो नीचे गिर जाता है। इससे उसके छिलके उसमें से अलग हो जाते हैं। ये भी एक सफाई करने का तरीका होता है। और जब एक बार कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो फार्मर उसे पैक करता है और पैक करने के बाद उसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज देता है। इसी तरह से यहाँ पर जो बासवा की फैमिली है, उसने भी जो अनियन क्रॉप्स वो निकाल कर लाए थे, उसकी लीव्स को, ड्राई लीव्स को कट कर रहे हैं। और कटिंग का काम कैसे कर रहे हैं? कटिंग का काम वो इलिज नाम के इक्विपमेंट को यूज करके कर रहे हैं। Baswa's amma and auntie uses the ilis to cut the dried leaves from the top of the onion. उसकी आंटी और उसकी मम्मी वो कटिंग का काम कर रहे हैं। और his appa and uncle fill the sacks, और उसके अप्पा और अंकल उन अनियंस को सैक्स में भर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ द इलिज, ये इलिज है और इसी से उसकी आंटी और अम्मा जो अनियन क्रॉप्स में जो लीव्स लगी हुई हैं सूखी हुई, उसको कट कर रही हैं। यह आपने भी अपने घरों में देखा होगा, इससे वेजिटेबल्स वगैरह भी काटे जाते हैं। ये बहुत शार्प होता है, इससे खेलना नहीं चाहिए आपको। और एक बार क्रॉप पैक होने के बाद 7th स्टेप आता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर पैक द क्रॉप्स एंड टेक्स टू द मार्केट इन अ बिग ट्रक। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी पैकिंग करते हैं क्रॉप्स की, और उसके बाद उसे बड़े बड़े ट्रक्स में भर कर उसको बेचने के लिए लोकल मार्केट्स में ले जाते हैं और हम वहाँ से खरीद लाते हैं और अपने घरों में यूज करते हैं। आपके बुक में ये एक एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें है कि आपको ये जो यहाँ पर इक्विपमेंट दिए हुए हैं, इनका नाम बताना है जो चैप्टर में यूज किया है, और फिर उसका नाम बताना है कि उसका नाम आपके एरिया में क्या है और उसका वर्क क्या है। जैसे फर्स्ट वन है ये वाला इक्विपमेंट, तो ये कौन सा है? देखिए, ये है कुरीज। और आपको अब आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर खुद लिखना है। और इसका काम क्या है? सोइंग सीड। नेक्स्ट वन इज खुंती। खुंती को कुदाल या फावड़ा कहते हैं और इसका काम क्या होता है? डिगिंग। एंड थर्ड वन इज इलिज, और इसका आपके एरिया में इसे हसुआ, सिक्कल, इसको इंग्लिश में सिक्कल कहते हैं। और वर्क इसका क्या है? कटिंग वेजिटेबल्स है। तो देखा आपने, एक जो फार्मर होता है वो ग्रो करने में कितनी मेहनत करता है। चलिए एक बार चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं। India is a land of agriculture.
The process of growing crops involves several steps: plowing, sowing, manuring, irrigating, weeding, harvesting, threshing, and winnowing. These are the steps. The farmer takes the harvest crops to the local market for sale. We should not waste the food. अब फार्मर इतनी हार्ड वर्क कर कर कोई भी क्रॉप ग्रो करता है, और अगर हम फूड खाएं नहीं, उसे फेंक दें, बर्बाद कर दें, तो ये गलत होगा। इसीलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक स्लोगन है ना, जितना खाना हो उतना ही लो और बर्बाद मत करो। इसीलिए आपको भी फूड बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।